Extra question answers. Electricity. What is the other name of the unit joule per coulomb? जूल किसका यूनिट है? वर्क डन का. कुलोम किसका है? चार्ज का. क्या होता है ये? वोल्ट. आंसर इज वोल्ट. जूल पर कूलम बोलें या वोल्ट बोलें, एक ही बात है. Which of the following correctly defines 1 volt? आंसर सेकेंड ऑप्शन है ना. तो वर्क डन को अपन ने कर दिया 1 जूल और चार्ज को कर दिया 1 कूलम. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन बाय 1 कूलम, 1 वोल्ट ऑफ potential difference. 3. Potential difference and device voltmeter. What is meant by saying potential difference is 1 volt? अभी हमने definition बोला था क्या? When 1 joule of work is done in moving unit charge, the potential difference is 1 volt. How much work is done when 1 coulomb charge moves 1 volt? वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P into Q. V is how much work done पूछ रहा ना. V is 1, charge is 1, 1 1 is 1. Work done joule. SI unit of potential difference? Volt. How much work is done in moving 2 coulomb charge? Potential difference इतना दिया. वर्क डन का फॉर्मूला वही V into Q. So it is 12 into 2, that is 24 joules. Unit of electric charge? Charge. Coulomb, yes. Symbol is Q. The unit is coulomb. Define 1 coulomb. किसके फॉर्मूले से बनाएंगे? करंट का फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम. 1 coulomb. If 1 ampere of current passes in 1 second, the total number of charge is said to be 1 coulomb. Definition अपने वर्ड्स में बना लेंगे. Potential is difference is measured in volt by using a voltmeter in parallel. Copper is a good conductor, plastic is insulator. Okay. Work done in moving unit charge across 2 points. Yes. Potential difference का फॉर्मूला ही था वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज. Measured by voltmeter, which is used unit of electric charge, coulomb. Potential difference unit, volt. 1 coulomb of charge is equal to 6.25 10 to power 18 electrons. न्यूमेरिकल में था ना. Very short answer 2. Physical quantity coulomb per second. coulomb किसका यूनिट है? चार्ज और टाइम. तो Q upon टाइम क्या था? करंट. Physical unit is called current. What is flow of charge? Current. Actually, what actually travels through the wire? Electric current. Electric current. What particles constitute current? Electrons. Direction of flow of which is the direction of flow of the electrons? Positive to negative. And electrons का direction क्या हो जाएगा? Negative to positive.
Which of the following shows correct relationship? First, yes, I होता है Q upon T, यूनिट लिख दिया बस. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स. मिली एम्पियर्स मीन्स 10 की पावर -3 और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6. मिली मतलब 1/1000 और माइक्रो मीन्स 1/10 लाख. ओके, चाहे वो एम्पियर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे कोई भी चीज हो. मिली मतलब डिवाइडेड बाय 1000. एक एम्पियर में कितना है? हम 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे थे. वो पूछ रहा है एक एम्पियर में कितना है. तो एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर हैं? 1000. 10 की पावर 3 कर दो और ये हो जाएगा 10 की पावर 6. एक एम्पियर में कितना है? राइट. Which of the two is connected in series? Ammeter. And how can ammeter voltmeter be connected in circuit? Ammeter series, voltmeter parallel. हमको चाहिए करंट. करंट क्या होता है? Q upon T, 20 divided by 1 is 20 एम्पियर. राइट. छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है. वो पूछ रहा है चार्ज. चार्ज क्या होता है? I into T. I into T. पोटेंजा 40 कूलम. ओके. अब ये पूछ रहा व्हाट इज द करंट. करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. हाँ, कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर. फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व करना, बस सिंपल सा फॉर्मूला है आपका. हाँ, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ डैश सर्किट, क्लोज सर्किट होना चाहिए. करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर यूजिंग ammeter placed in series. Right. MCQs 2. Potential difference का other name? Voltage. Which of the following is correct? Ammeter connected is series, voltmeter in parallel correct है. Ammeter has high resistance, voltmeter has low resistance. Only one is correct. Unit of current? Ampere. What charge? पूछ रहा है चार्ज. चार्ज क्या हो जाएगा? I into T, 5 10 जा 50. ठीक है. 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 हो जाएगा. हमें चाहिए करंट. करंट क्या होता है? Q upon T. Q is 300 divided by 600, 0.5. Right? Name the law. Ohm's law. Symbol for resistance. ठीक है. Name the unit. Resistance. Physical quantity. Resistance. General name of substance having infinitely high resistance. Insulator. Keeping resistance constant, potential difference is, potential difference को हाफ कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? V is proportional to I. बात खत्म है ना. V को डबल करेंगे I डबल होगा, V को हाफ करेंगे I हाफ होगा, V को 1/3 करेंगे I 1/3 होगा. बस सीधा सीधा. फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिपेंड्स? हम समझ लो. फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस बता दो. वोल्टेज ठीक है. रेजिस्टेंस which has less electrical resistance. ठीक. मोटे से पानी बड़े इजीली फ्लो होता है, पतले से मुश्किल जाती है. रेजिस्टेंस पतले में ज्यादा है.
ठीक है, इतना ध्यान रखना। द आर रेजिस्टेंस इज हाफ, करंट विल बी डबल, ठीक है ना, करंट विल बी डबल। पोटेंशियल 20 है, रेजिस्टेंस 5 है, हमें चाहिए करंट V इक्वल्स टू आई आर, ये आपका फॉर्मूला है। I क्या हो जाएगा, V अपॉन R दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर्स करंट। बोलता पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, I इंटू आर कितना हो गया 40 वोल्ट। वो पूछ रहा रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, V is 3 divided by 5, 3 divided by 5, 0.6 ohms. Ohm's law states relation between PD and current. Potential difference across 3 और 6, हमें चाहिए potential difference, मतलब V क्या होता है I into R 6। अच्छा, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन I, 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। वो 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर, R चाहिए, R क्या होता है V अपॉन I, 12 डिवाइडेड बाय हाफ दैट इज 24। अप्लायंस का रेजिस्टेंस 25 है, उसका सप्लाई 30 है, I क्या हो जाएगा V अपॉन R, 230 डिवाइड बाय 25, ये 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 230 डिवाइडेड बाय 25, 9.25, 10 या 250, 10 से थोड़ा सा कम, है ना, डिवाइड करके भी नहीं देखना है। रेजिस्टेंस 4 है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, हमें क्या चाहिए कूलोम। हाँ, कूलोम पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस पर सेकेंड, कूलोम पर सेकेंड मतलब करंट ही तो चाहिए, है ना, तो करंट क्या होता है V अपॉन R, है ना, 12 by 4 that is equals to 3, 3 मतलब सेकंड ऑप्शन। हाँ, गिव द रिलेशन Ohm's law, potential difference and charge, 9, current and potential difference, V is proportional to I, ठीक है ना। हाँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ohms, हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटर, रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, आर को हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा। अगर कंडक्टर को मोटा बनाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेस्ट कंडक्टर, हाँ मटेरियल, अब मटेरियल तो कौन सा मटेरियल अच्छा कौन सा बुरा, है ना, सिल्वर बेस्ट, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, बाकी चीजें। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, विच इज बेटर आयरन और मरकरी, आयरन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में क्या यूज करते हैं, कॉपर। हीटिंग एलिमेंट में क्या यूज करते हैं, निक्रोम, निक्रोम। व्हाट इज निक्रोम, इट इज एन alloy, one uses, it is used in heating element। बोलता है कि निक्रोम एलॉय को हम लोग हीटिंग एलिमेंट में क्यों यूज करते हैं, 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन
इवन एट हाई टेम्परेचर इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। मेटल तो है नहीं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ये तो अलॉय है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, पहली चीज। ऑक्सीडाइज नहीं होता, दूसरी चीज हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, तो क्या यही रीजन है इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल? सेम रीजन हो गया। यस, विच हैज मोर रेजिस्टेंस? निक्रोम छोटा की लंबा? निक्रोम की लेंथ शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट? अरे जितना ज्यादा लंबा रहेगा, हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। निक्रोम हो चाहे कोई भी चीज हो, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और थिन की थिक? थिन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, पतले में ज्यादा। रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इम्प्योरिटीज से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे हम लोग ने एलॉय बना दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ohms. Length increases, resistance increases when length increases, temperature increases, cross section area decreases, right? हाँ, अभी न्यूमेरिकल आ गया। वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ। पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल दो, आर रो एल अपॉन ए, राइट? रो कितना है? ये है ना रो 1 10 की पावर -7, मतलब 1 अपॉन 10 की पावर 7 लिख दे नीचे, रो हो गया। ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया? 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहले मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो है ना, 3 ना, और स्क्वायर है तो 6 जीरो, माइनस में आएगा ना, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। और कुछ था उसमें, लेंथ, लेंथ 300, तो 6 जीरो और 1 7 जीरो ये कट गया, तो आंसर बचा 30। तो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया इसका। बस वैल्यूज पुट अप करके ध्यान से करना है। अगर डायमीटर को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस, हाँ 1/4। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दैट मींस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और डायमीटर, जो भी बोल दो, उसके स्क्वायर की। तो डबल करोगे 2 का स्क्वायर 4, 1/4 टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर कॉपर वायर का 1 है, निक्रोम का कितना होगा? निक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर से 60 टाइम्स ज्यादा है, टेबल में देखना। तो अगर आर है रेजिस्टेंस कॉपर वायर का, रेजिस्टेंस 1 है, उतने ही लंबे सिमिलर निक्रोम वायर का 60 टाइम्स 60। डायमीटर इज हाफ, रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। स्क्वायर करो और इनवर्स कर दो। रेजिस्टिविटी इज 0.6, 0.6 क्या हो सकता है ये? रेजिस्टिविटी 0.6, ये क्या है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का तो और फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका इंसुलेटर का, और कंडक्टर का तो बहुत कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड रेजिस्टेंस। अब देखो एरिया की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है ना। हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को डबल करोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर?
रेजिस्टिविटी केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर से ही चेंज होगा। हाँ, वो मटेरियल तो फिक्स है, कॉपर है, तो फिर टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी मतलब देखो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहा है, तो रेजिस्टिविटी मतलब कि अगर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल, राइट। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या होता है? R1 + R2। अगर 5 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा? 1, 0.2 प्लस 0.2 0.2 0.2, पांचों को सीधे सीधे सीरीज में ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और पैरेलल का क्या होता है? 1/RP इज 1/R1 + 1/R2 + 1/, ऐसा डैश डैश डैश। अगर हम लोग ने 3 रेजिस्टेंस 3 ओम्स के पैरेलल में लगाए, 1 आएगा। 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा 3/3, 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1, 1/RP इक्वल्स टू 1 का रेसिप्रोकल 1। 2 रेजिस्टेंस 2 ओम्स के हैं और हमें चाहिए 1 ओम। सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल? पैरेलल। सीरीज में तो 2 + 2 4 हो जाएगा, पैरेलल में हाफ हो जाता है। 2 रेजिस्टेंस है X और Y, पैरेलल में लगाना है, सीरीज में लगाना है, किस में रेजिस्टेंस कम होगा? अंडरस्टूड, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा, सीरीज में तो प्लस हो जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 हैं, एक 2 और 6, 1 ऑफ वैल्यू अदर इज 6, व्हाट इज द पॉसिबल रेजिस्टेंस? सीरीज का कितना हो जाएगा? 8, है ना। सीरीज का तो 8, पैरेलल का फॉर्मूले से कर लेना, है ना। सिंपल फॉर्मूला लगाना बस, और कुछ खास नहीं है। आपके पास 2 ओम्स, 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम्स के, आपको बनाना है 2 ओम्स। क्या करेंगे? पैरेलल में लगा दो। मुझे 8 बनाना है, सीरीज में 4 + 4 8, है ना। अच्छा, 2 जब भी लगाते हैं ना तो पैरेलल में तो हाफ होता है वैल्यू। जब भी 2 लगाओगे तो उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो 10 का लगाओगे तो 5 बन जाएगा, 4 का लगाओगे तो 2 बन जाएगा फॉर्मूले से। इसका ये तो फिगर दिया नहीं है ना, इसको इग्नोर कर दो। ये तो अपने बुक का क्वेश्चन है क्या? अगर 2 पार्ट्स हैं तो R/2 R/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/R + 2/R, टोटल हो जाएगा 4/R। 1/RP इज 4/R, RP क्या हो जाएगा? R/4। ओके, हाँ। कंबाइंड रेजिस्टेंस फर्स्ट में फिगर नहीं है, सेकंड में भी फिगर नहीं है, ये सेकंड किया जा सकता है, चलो कर ले। तो इन दोनों को सीरीज में कर दिया, कितना हो गया? 40। और इस 40 के पैरेलल में एक और 40 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20, करेक्ट है। थर्ड में डायग्राम नहीं है, छोड़ दो। फोर्थ में डायग्राम नहीं है, छोड़ दो। फिफ्थ में भी डायग्राम नहीं है, छोड़ दीजिए। सिक्स्थ में फिगर नहीं है, ये सब फिगर बेस्ड थे। और ये वाला अब बुक का है ना, 5 पार्ट्स। रेजिस्टेंस कितना है? R, उसके 5 टुकड़े करोगे तो क्या होगा? R1/5। पैरेलल में लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/R1 + 5/R1, ऐसे करके 5, तो टोटल हो जाएगा 25/R1। क्या चीज है ये? इसका कॉम्बिनेशन R2। सो व्हाट इज, अब देखो हमें क्या चाहिए? R1/R2। 1/R2 = 25/R1। R1 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, R1/R2 इज 25/1, दैट इज इक्वल्स टू 25। बुक का क्वेश्चन है। Are the lights in your house in series? No. What happens to the bulbs in series if one is blown off? सारे बंद हो जाएंगे, पूरी लाइट गोल हो जाएगी। और पैरेलल में अगर एक बल्ब गया तो
बाकी चालू रहेगी, सिर्फ वो जो फ्यूज हुआ उसकी वो बुझ जाएगा, बाकी सब चालू रहेगी। तो हम लोग लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स खूब सारे बनाने हैं, झालर बनानी है, तो क्या प्रेफर करते हैं? अगर बहुत बड़ी होटल है और उसमें झालर लगानी है तो सीरीज में लगा दो, लेकिन अगर घर के अंदर की लाइटिंग तो पैरेलल में ही होगी, है ना। झालर तो सीरीज में ही लगाते हैं ना। सर्किट डायग्राम तो बन जाएगा, इसको छोड़ दें अपन, एमसीक्यू पे आ जाए। स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिपेंड। एनर्जी डिपेंड्स। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज पावर इनटू टाइम। तो दो फैक्टर हो गए। तो किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है? 60 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तभी तो इसका पावर कम हो गया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। तो दो बल्ब हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 100, इसका रेजिस्टेंस क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, है ना। और हमें क्या दिया है? V दिया है, I तो नहीं दिया ना। I की जगह क्या लिख दें? V अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। हमें क्या चाहिए? आर। आर हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो V स्क्वायर 220 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 22 का स्क्वायर 484, राइट। फॉर्मूले में पुट अप करना, मतलब बेसिक एक ही फॉर्मूला है, फिर हमको जो चाहिए उसको कन्वर्ट कर लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स, एसआई यूनिट, हाँ। और इलेक्ट्रिक पावर का वॉट। किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का बड़ा यूनिट। और वॉट आर किसका है? एनर्जी कंजम्पशन, राइट। क्वांटिटी हैज यूनिट वॉट, पावर। What is the meaning of kilowatt hour? Means 1 kilowatt of energy is consumed in 1 hour, right? Which quantity? Electrical energy consumption. The potential difference is doubled. The power will double. Power is equal to V into I, है ना। तो P is directly proportional to V or I. Okay, okay. पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो पावर भी डबल हो जाएगा, डबल। एक लैंप है 1236, 12 वोल्ट की सप्लाई। व्हाट अदर इंफॉर्मेशन डज द लेवल प्रोवाइड? 3 एम्पियर। तो हम करंट कैसे निकालेंगे? P अपॉन V। करंट आ जाएगा P अपॉन V। P कितना है? 36। V कितना है? 12। आंसर 3 एम्पियर्स। ये इंफॉर्मेशन भी दी रहेगी, 3 एम्पियर का है। तो पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, हमें चाहिए करंट। करंट निकाल देंगे, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। यस, कैलकुलेट कर लेंगे आप, हो जाएगा ना इजीली। 23 कितने बार कटता है? 4 बार। 920 डिवाइडेड बाय 23, है ना, 4 बार कट जाएगा। 4 एम्पियर्स करंट। ओके, हमें चाहिए पावर। क्या दिया है? V और I। पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। 12 into half, 6. Unit of electric power, watt.
likely to be the correct wattage of electric iron. घर में जो आयरन यूज करते हैं उसका कितना हो सकता है वॉट? 850 तक हो सकता है, 1 किलो तक हो सकता है ना? हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो कमर्शियल की बात नहीं कर रहे जो बहुत बड़े बड़े, ठीक है? आप खुद ही सोचो कि 9 वॉट का तो ये एलईडी बल्ब है, 20 वॉट की तो ये एलईडी ट्यूबलाइट है ना? ये हैवी अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिक आयरन 850। ओके, अगर एक हीटर है 2 kW का और 4 उसका यूनिट है 3 घंटे में, ये क्या है? किलो वॉट आवर है ना? एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 2 किलो वॉट, और टाइम कितना है? 3 आवर्स। 3 आवर्स तो कितना हो गया? 2 3 जा 6 किलो वॉट आवर। 6 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर 4 रुपए का, 6 4 जा 24 रुपीज का बिल आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जूल, ऐसा यूनिट। कमर्शियल यूनिट किलो वॉट आवर। बोलता एनर्जी, एनर्जी होता है, एनर्जी कंजप्शन होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100। टाइम कितना है? 60 सेकेंड्स, 6000 जूल्स। हाँ, फॉर सेफ वर्किंग केबल शुड बी कनेक्टेड एट लीस्ट करंट कितना होना चाहिए? तो पावर होता है V इंटू आई, तो आई क्या होगा? P अपॉन V। P इज 3000 डिवाइडेड बाय 230, कितना? हाँ, 15 एम्पियर्स करीब करीब। जितना जो वैल्यू आए उससे थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए, नहीं तो फिर आप जितना आपकी जरूरत है उससे कम लगाए हो तो फिर हीटिंग होगी और वो जल जाएगा। ओके, 6 वोल्ट की सप्लाई चाहिए आपको, 0.5 एम्पियर। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? हाउ मेनी जूल्स? कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट वाला, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, नहीं अपॉन चार्ज, और आई था Q अपॉन टी, तो आई इंटू टी, आई इंटू टी, W इक्वल्स टू V आई टी। हाँ ठीक है, V कितना है? 6, I कितना है? हाफ, और T कितना है? 1। आंसर 3। ओके, नेक्स्ट, in a given time house supply इतना, how many 75 watt 250 could be switched at the same time connected in parallel? क्या किया हमने? एक का वॉट कितना है? 75, मैंने x लगा दिए तो टोटल वॉट, टोटल पावर आ गया। टोटल पावर, पावर क्या होता है? V इंटू आई। बस सॉल्व कर लिया, तो 293 बल्ब चला सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, पावर इज हाफ, is equal to V into I। भाई रेजिस्टेंस सेम रखोगे तो करंट सेम रहेगा, P और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे तो पावर भी हाफ हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, हीट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। पहले तो फॉर्मूला H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। How much, how does heat produced by the current depends on the magnitude of current. It is proportional to I square. If current is doubled, it will be 4 times square है। Two effects of electric current: heating effect
मैग्नेटिक इफेक्ट, एक और होता है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट यूज बाय इलेक्ट्रिक लाइट, हीटिंग इफेक्ट, बल्ब हीट होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट, हीट होके मेल्ट हो जाएगा। टू डिवाइसेस विच वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट, आयरन हीटर, टोस्टर, गीजर, बहुत सारे अपने पास है ना। टू गैसेस विच इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ताकि रिएक्ट ना करे, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए, नहीं तो फिलामेंट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर और धीरे धीरे करके करोड हो जाएगा और फिलामेंट टूट जाएगा। Why filament are not power efficient? Explain why filament type. ये अब अपन पावर सेवर नहीं है ये फिलामेंट टाइप, क्यों? हीट एनर्जी इज लॉस्ट। फिलामेंट वाला बल्ब लगाते हो ना, इनकैंडेसेंट बोलते हैं, बहुत गर्म हो जाता है वो, तो हम कहाँ यूज करते हैं मालूम है? हीटिंग के लिए। मतलब हम यूज कर रहे हैं पेपर, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। बारिश में नमी आ गई है ना, तो हम बल्ब जला के उनको गर्म करके उसको हीट करते हैं, तो हम तो गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं, और आप ताप लोगे तो गर्मी दूर हो जाएगी। तो उसका पावर कहाँ चला गया? हीट लॉस हो रहा है, इसलिए तो ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। फिर क्या आया? CFL आया। अब तो CFL भी खत्म, अब क्या यूज हो रहा है? LED। 60 वॉट का बल्ब जितनी रोशनी देता था, उससे अच्छी रोशनी 9 वॉट का LED बल्ब दे रहा है। 9 वॉट, कहाँ 60, कहाँ 9, समझ रहे? इट इज मोर पावर एफिशिएंट। तो कौन सा फिलामेंट टाइप पावर एफिशिएंट क्यों नहीं थी? बिकॉज देयर वाज हीट लॉस, एनर्जी वाज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कॉर्ड गर्म नहीं होता है, जबकि हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाता है। कॉर्ड का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने से हीटिंग कम होती है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इज proportional to the square of current, I square RT। I square स्क्वायर तो I में ही होता है और R और T होते हैं बस। करंट इन द इलेक्ट्रिकल इज डबल्ड, करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स I स्क्वायर है। फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट, हीट होके मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। हीटिंग डिवाइसेस आर मेनली यूज्ड ऑफ निक्रोम अलॉय। I क्या है? करंट इज Y, तो Y स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फॉर्मूला वही है, बस XYZ रखना है आपको। नॉट सुटेबल फॉर फ्यूज वायर, फ्यूज वायर तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। थिक एंड शॉर्ट, थिक में तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, हायर रेजिस्टेंस देन रेस्ट ऑफ द वायरिंग, पर इतनी ज्यादा भी नहीं रहे। थिन एंड शॉर्ट, तो आंसर क्या है? थिक एंड शॉर्ट। ये तो हम सोच रहे हैं कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, तो आंसर इज आपका एक ही ऑप्शन है। हाँ, नॉट सुटेबल, कौन सा नॉट सुटेबल? थिक, थिक का रेजिस्टेंस कम रहेगा, हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, और शॉर्ट का रेजिस्टेंस कम रहेगा, हमें ज्यादा चाहिए, तो ये ऐसा सुटेबल नहीं है, ये याद रखना। फिलामेंट टाइप बल्ब कंज्यूम मोस्ट एनर्जी अपीयर्स एज हीट एनर्जी। एनर्जी कैसे लूज होती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है मालूम है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ओके, मोस्ट लाइकली टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट कितना होगा? फिलामेंट का 2500 डिग्री, इतना हीट होता है 2500 डिग्री।
मतलब कि फिलामेंट का टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इससे हाई होता है, नहीं तो मेल्ट हो जाता। द करंट फ्लोइंग थ्रू आर इज हाफ, करंट इज हाफ, हीट इज 1/4, है ना। H is proportional to I square. Okay.